हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फन विद आर्या। सो फ्रेंड्स, मैं आपको उसी चैप्टर्स के ये जो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, ये पेज नंबर 31 पे शायद, मेरी बुक में तो इसमें दिया है। तो जो इसमें टेबल दिए हुए हैं ना, द रूलर्स ऑफ द दिल्ली, तो आज मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ तक कि मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में और जो ये डायनेस्टीज़ दी हैं उनके रूलर्स के बारे में भी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। ओके, उनकी टाइम पीरियड के बारे में और उनके जो रूलर्स थे उन सब के जो मेन चीज़ें मैं आपको एक एक रूलर के बारे में सब कुछ समझाऊँगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताती हूँ। तो दिल्ली सल्तनत वाज एन इस्लामिक एम्पायर बेस्ड इन दिल्ली दैट स्ट्रेच्ड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर 320 years. 5 dynasties ruled over the Delhi Sultanate sequentially. First, the Rajput dynasty, second Chauhan's dynasty, third early Turkish ruler, fourth early Khalji dynasty, Tughlaq dynasty, and Sayyid dynasty and Lodi dynasty. Okay, these are the 5 dynasties. Okay, so let's begin with Tomara Rajputs. Okay, they were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chamas of Ajmer. One thing I want to tell you that this dynasty is connected to this and this dynasty is connected to this. Okay, all dynasties are connected to other dynasties. Okay, and one more thing I want to tell that Chauhan's previous name was Chamas. We say Chauhan's in old time we say Chauhans to that Chahamas. Okay, so first I want to tell that when I was researching about this, then I found many things important about this dynasty, that Chauhans and Tomara Rajput. I found that these two dynasties are connected very much to each other. Okay, first Delhi was under the Tomara and Chauhans. That Delhi became an important commercial center. That in that both dynasties only that Delhi become very important city in India. Okay, that if every rulers want to take Delhi, that they want to rule in Delhi only. Okay, so now next is many rich Jain merchants lived in city and constructed several temples. Coins minted here called as diwalas, means that some Jain merchants, that is any we can say no, any Jain, they are Jain, means any हिंदी में बोलूँ तो धर्म. ओके, कास्ट. ओके, तो बहुत सारे जैन मर्चेंट्स वहाँ रहने आ गए थे और उन्होंने मतलब बहुत रिच थे वो लोग, तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवा दिए, बहुत सारे कॉइन्स मेंटेन करवा दिए गोल्ड के, जो जिनको हम लोग कहते हैं दिवाल्स. ओके, दिवाल्स कहते हैं उन्हें, DEHLIWAL दिवाल्स कहते थे. ठीक है, जो कॉइन्स थे, ठीक है, वो कॉइन्स होते थे ना, तो उनको दिवाल्स कहते थे. और दे ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century. Means that in this century only the Delhi transformed very much speeds. Okay, that other places were not found, was not transformed that much that Delhi become. Okay, so now this part is connected to each other and I want to tell about that Chauhans. Okay, Chauhans के बारे में पढ़ते हैं हम. Popularly known as Prithviraj Chauhan, means that here this name is given Prithviraj Chauhan. He was very famous in Chauhan dynasty.
and he ruled up to 1175 to 1192. Okay, and this Tomara Rajput started in early 12th century, 1165. Okay, and Angapala ruled 1130 to 1145. ओके, आपको डेट से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बार बार उसको पढ़ते रहेंगे ना तो डेट अपने आप याद हो जाएगी. ओके, जो अब मैं उनके बारे में और बताती हूँ. और राय पृथ्वीराज. ओके, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम था राय पृथ्वीराज. ओके, पिथौरा, सॉरी. और पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बुक भी है जो है पृथ्वीराज 3, है ना. वॉज अ के बारे में और बताती हूँ मैं. वॉज अ किंग फ्रॉम द चहामास. मैंने अभी आपको बताया कि चौहान को चहामाना भी कहते थे, चहामाना कहते थे. और डायनेस्टी ही रूल्ड सपादालकश द ट्रेडिशनल चहामान टेरिटरी इन प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ओके, मतलब एक जगह है सपादालकश जो मतलब जहाँ पे पहले पृथ्वीराज चौहान रूल करते थे. अब हाँ, ये मत समझिएगा दिल्ली में कर रहे हैं तो दिल्ली में ही रहते थे. पहले ना ये बॉर्डर्स नहीं बने रहते थे. कितना छोटा सा दिल्ली था पहले. दिल्ली बहुत बड़ा था. मैंने अभी बताया ना कि पहले जो हाँ सर, पहले इन दोनों डायनेस्टीज़ पर और सभी, मैंने आपको पिछले क्विज़ में भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक थे जिनके टाइम पीरियड में यहाँ पे दिया है मोहम्मद तुगलक. उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिनके टाइम पे दिल्ली ने बहुत एक्सटेंड किया था. याद है, मैंने पिछले क्विज़ में आपको बताया था. जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा वैसे, तो आप देख लेना. ओके, और उनके टाइम पीरियड में बहुत एक्सटेंड किया था. मतलब कि उस टाइम पे दिल्ली बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था. हाँ, अब तो जब पंजाब जितना हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश के टुकड़े 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 करेंगे तब जाकर एक दिल्ली बनेगा. बहुत छोटा सा दिल्ली हो गया है. तो वही पहले बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया था, लेकिन जब और रूलर्स आते गए तो उन्होंने बहुत गड़बड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से दिल्ली मतलब इतना सा है. पहले इतना सही दिल्ली था. हाँ, फिर उसके बाद कुछ जो इतने सारे रूलर्स हैं ना, उन्होंने दिल्ली को बहुत बढ़ा दिया. ठीक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था दिल्ली को. मान लीजिए ये दिल्ली है तो उसको इतना से इतना बना दिया. हाँ, उसको एक्सटेंड करते गए. लेकिन जब कुछ जो मतलब और रूलर्स आते गए ना, मतलब पहले उसके बाद तो इन लोग के बाद तो बहुत लोग आए. मंगोल्स आए और मुगल्स आए, बहुत लोग आए. तो उनके टाइम पे भी बहुत एक्सटेंड किया था दिल्ली ने. लेकिन उसके बाद दिल्ली जो है कम होता गया, छोटा होता गया, बहुत ज़्यादा छोटा 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 हो गया. और आज दिल्ली इतना सा है. है ना. तो यही है. जब एक जगह आज भी है पालादालकश, तो उस जगह पे मतलब दिल्ली जब बड़ा था ना तो उस जगह को भी दिल्ली ही कहा जाता. मतलब दिल्ली एक मतलब एक तरह से स्टेट बन गया था. जैसे स्टेट होता है ना, मान लो जो यूपी है, पहले ये यूपी है तो यहाँ पे आजमगढ़ हो जाएगा, यहाँ पे लखीमपुर हो जाएगा, यहाँ लखनऊ हो जाएगा, सीतापुर हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे होते थे. तो एक जगह थी शापालादालकश. तो उस जगह पे कौन रूल करते थे, मतलब उस जगह मतलब एक किला बनता था ना, तो जहाँ पे बैठ के जो राजा होते थे तो वो अपना पूरा राजकाज देखते थे. और मैंने आपको पिछले वीडियो के में भी बताया था कि वो पहले अपने स्लेव्स को बैठाते थे, हाँ, ना कि अपने सन्स को. तो स्लेव्स को बैठा देते थे अलग अलग जगह. मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए अब वो किंग वाला राज चल रहा हो तो यहाँ पे एक स्लेव को बैठा दिया, दूसरे स्लेव को बैठा दिया, यहाँ राजा खुद बैठा है. हाँ, तो ऐसे ही हुआ था कि एक जगह शापादालकश में पृथ्वीराज चौहान अपना बैठ के रूल कर रहे हैं और बाकी जो प्लेसेस थी वहाँ पे उनके स्लेव्स बैठे हैं. ठीक है, स्लेव्स काम कर रहे हैं. तो मैंने आपको इतना बता दिया है. अब मैं आपको ना
अर्ली टर्किश रूलर्स के बारे में बता देती हूँ। ओके, अर्ली टर्किश रूलर के जो है 1206 से 1290 तक उन्होंने रूल किया था। और मैं आपको अभी और बताती हूँ, एक मिनट। और इनके में भी बहुत सारे सुल्तान्स आए, मैं इनको और बताती हूँ। वन कुतुब अल दीन ऐबक, ये जो इनका है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका पूरा नाम था कुतुब अल दीन ऐबक, assumed authority over the Gurad position in India. He moved from the neighborhood of Delhi into Lahore. There he set up guard against under the Muhammad of Gurad slaves, and Taj al-Din Ildiz of Gaza, who also claimed his former master's Indian position in 1208। वैसे ही आपकी बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने सोचा इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूँ। ओके, मतलब कि जो आपने अच्छा, आप किसने कुतुब मीनार देखा है? कुतुब मीनार सबने देखा होगा। आप कुतुबुद्दीन ऐबक से मैच करो, कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक मिला है ना, क्योंकि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के ही ने ही बनवाया था। जैसे शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनाया था, वैसे ही इन्होंने भी किसी वजह से कुतुब मीनार बनवाया था। ओके, तो और इस अर्ली टर्किश रूलर डायनेस्टी में ना बहुत ख़ास चीज़ है, बताओ। यहाँ पे एक इल्तुतमिश आए हैं, शहाबुद्दीन इल्तुतमिश। ओके, इस डायनेस्टी में ये चेंज आया जैसे कि हर डायनेस्टी में उनके स्लेव्स बनते थे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे कोई था, लेकिन इनका बताया नहीं गया है इल्तुतमिश के किंग के बारे में। लेकिन सच बताओ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये भी स्लेव्स किंग थे, ठीक है। पिछले क्विज में भी मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव किंग थे, और ये स्लेव थे, है ना, स्लेव किंग बन गया। लेकिन इसके बाद इनके शायद इल्तुतमिश भी स्लेव ही थे। और उसके बाद लेकिन ये ध्यान रखिए, रज़िया आ रही हैं, रज़िया सुल्तान आ रही हैं। ओके, रज़िया जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। असल में ये इसलिए बनी ना, क्योंकि जो इल्तुतमिश थे, शहाबुद्दीन इल्तुतमिश, ये चाहते थे कि मतलब इनके और भी बेटे थे, रज़िया के और भी भाई थे, लेकिन वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे, कि उतने वो पावरफुल नहीं थे कि वो सुल्तान की पोस्ट पे बैठे हैं, सुल्तान की जगह ले। वो इतने वो नहीं थे, वो मतलब इतने पावरफुल नहीं थे, उनके उतने काबिल नहीं थे वो लोग जितने रज़िया थी। रज़िया बहुत ज़्यादा काबिल थी इस वजह क्वीन बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए। और इसने ये बनी भी 4 सालों के लिए बनी, 1236 टू 1240 4 सालों के लिए बनी थी। लेकिन बहुत लोग, जैसे उस टाइम विरोध चलता रहा था कि मतलब हमें जो है फीमेल किंग नहीं चाहिए, हमें फीमेल क्वीन नहीं, वो सुल्तान नहीं चाहिए। ओके, ये चलता था, इसलिए किसी तरह इसने 4 साल अपना पूरा सल्तनत चलाई अच्छे से। लेकिन उसके बाद ये हट गई। उसके बाद आए गयासुद्दीन बलबन आए, जो कि रूल किया उन्होंने 1266 टू 1218, ठीक है। मैं रज़िया के बारे में और बता देती हूँ आपको। रज़िया सुल्तान जो है 1236 टू 1240 तक रूल किया था, और मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। सुल्तान रज़ियात उद दुनिया व उद्दीन, बहुत बड़ा नाम था इनका, रज़ियात उद दुनिया व उद्दीन, ये नाम था इनका। और पॉपुलरली नोन एज रज़िया सुल्तान, वाज अ रूलर ऑफ दिल्ली इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ओके, और इनके जो प्रेडिसेसर थे वो थे
इलाकुद्दीन फिरज सक्सेसर थे इनके म्यूसुद्दीन बहराम। और ये जो है इनकी डाइट डेट है 15 अक्टूबर 1240 कायथाल दिल्ली सल्तनत। ओके, मतलब ये कायथाल में उनकी मृत्यु हुई थी और दिल्ली सल्तनत में ही थी ये जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो और जिस वर्ष इनका कार्यकाल सब खत्म हुआ उसी वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी। और उसी के अगले उसी के कुछ सालों बाद ही गयासुद्दीन बलबन ने राजकाल सब संभाला था। और मतलब बीच में किसी और का भी आया था लेकिन आपकी बुक में दिया नहीं है। और अब हम अगली डायनेस्टी के बारे में पे चलते हैं, खलजी डायनेस्टी। ओके, खलजी डायनेस्टी जो है 1290 to 1320 तक रही थी। द खलजी डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी वॉज अ तुर्को अफगान डायनेस्टी विच रूल्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत। मतलब जो खलजी डायनेस्टी आज हम बोलते हैं ना, वो एक तुर्को अफगान डायनेस्टी थी। मतलब पहले उसको जो है खलजी डायनेस्टी थी उसको पहले तुर्को अफगान डायनेस्टी कहते थे, विच रूल्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत कवरिंग लार्ज पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर नियरली 3 decades बिटवीन 1290 एंड 1320। तो ओके, 1320 तक इन्होंने पूरा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया अपनी जो वो थी इनकी जो सल्तनत थी उसको बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड किया था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इन सारे डायनेस्टीज़ के बारे में बता दूंगी, आप लोग देख लेना। ओके, हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। खलजी डायनेस्टी से जो है जलालुद्दीन खलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खलजी ने 1290 to 1296 तक रूल किया और बहुत मतलब ये भी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने भी एक्सटेंड करवाया था। और अब हम लोग अगली अलाउद्दीन हम लोग अब बढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे, जिन्होंने रूल किया था 1296 to 1316 पे। ओके, मैं आपको बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, खलजी सॉरी। और ये बॉर्न हुए थे अली गुरशप के समय में जो है उनका बॉर्न हुआ था वॉज एम्परर ऑफ द खलजी डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अलाउद्दीन इंस्टीट्यूट अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस रिलेटेड टू रेवेन्यू प्राइस कंट्रोलर्स एंड सोसाइटी। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको ना मन करता है हाईलाइट करना चाहिए इसे कि जब ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी आए ना, तो इन्होंने जो मतलब एक तरह से रेवेन्यू कलेक्टर जो था, प्राइस कंट्रोलर्स था और सोसाइटी जो थी ना उसको बहुत चेंज किया था। मतलब कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता तो या तो उसको बढ़ाया होगा या तो घटाया होगा, ठीक है। और इनको जो मार्केट में प्राइजेस होते हैं ना, जैसे आजकल तेल के भाव बढ़ रहे हैं वैसे ही इन्होंने बहुत सारे प्राइजेस को कम किया था, बढ़ाया था। और इन्होंने सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस लाए थे। खलजी डायनेस्टी में मतलब 2 लोग अभी आपको दिख रहा है ना, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने भी बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत थी ना, तो जो ये पूरी दिल्ली सल्तनत है उसमें से अलाउद्दीन खिलजी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और काश इस टाइम भी होते तो शायद कम हो जाते सारे भाव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इनका जो है इनकी डाइट डेट है 4 जनवरी 1316। मतलब कि ये उसी ईयर जो है डाइड हुए थे जिससे इनका
मतलब ये उसी समय डाइड हो गया था जिस टाइम इनका पूरा कार्यकाल ख़त्म हुआ था। असल में बताऊँ, जब जब जो सुल्तान होते थे ना, जब वो डाइड हो जाते थे तो उनका मतलब पूरा कार्यकाल ही ख़त्म हो जाता था ना, तो कोई और लेता था उनकी जगह, या तो बेटे लेते होंगे या फिर अगली डायनेस्टी ही लेती होगी। तो कुछ समय तक तो किसी ने रूल किया होगा। फिर उसके बाद कौन से आए डायनेस्टी, उसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जो है, तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414 तक इन्होंने रूल किया था। Its region started in 1320 in Delhi when Ghazi Malik assumed the throne under the title of Gyath al-Din Tughlaq. The dynasty ended in 1413. Okay, मतलब कि ये गाजी मलिक के टाइम की है, जिनको हम लोग कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनका पूरा नाम था गाजी मलिक, और या फिर कहे गयासत अल दीन तुगलक। ठीक है, और ये डायनेस्टी जो है टेरिटरी अंडर द तुगलक डायनेस्टी ऑफ अंडर सुल्तान दिल्ली सुल्तनत 1330 to 1335 AD. The empire shrank after 1335 AD. ओके, मतलब श्रैंक हो गई थी, बहुत छोटी छोटी हो गई थी, मतलब थोड़ी छोटी हो रही थी तब। कब हो रही थी वो? 1335 में। ठीक है, क्योंकि देखो ये 1320 to 1414 तक थी ना, तो 1335 में, यानी कि इनके बाद में शायद हुई थी। हाँ, इनके ही बाद में, मतलब मोहम्मद तुगलक ने सही में बहुत सारी गड़बड़ी करती थी, जिसकी वजह से जो सल्तनत थी वो बहुत छोटी हो गई थी। ओके ना, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का नाम सुना लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये किसी के वो थे, क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर थे, है ना, याद आया? पिछले क्विज़ में भी मैंने आपको बताया था। हाँ, तो अब अगला हम लोग देखते हैं। ये भी मतलब इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि डायरेक्ट सुल्तान ही बन गए। ठीक है, और इन्होंने कब तक रूल किया? 135 से 1351 से लेके इन्होंने 1388 तक रूल किया था। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टू सैयद डायनेस्टी। मैं आपको सैयद डायनेस्टी के भी बारे में बताती हूँ। सैयद डायनेस्टी ने 1414 to 1451 तक रूल किया था। द सैयद डायनेस्टी वॉज द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत विथ 4 rulers ruling from 1414 to 1451, founded by Khiraz Khan, a former governor of Multan. They succeeded the Tughlaq dynasty and ruled the Sultanate until they was displaced by the Lodi dynasty. मतलब कि जो खिरज शाह थे, ठीक है, इन्होंने पहले तुगलक डायनेस्टी के जो लास्ट थे फिरोज शाह तुगलक, उनको हराया, और जो कि थी 1414 तक। हाँ, और मतलब कि ये ही सैयद डायनेस्टी में थे, जो कि पूरे इन्होंने कार्यकाल बहुत लंबे समय, मतलब उतने, मतलब अकेले रहे तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाए। मतलब चलाया बहुत लंबे समय तक, 1414 to 1451 तक चलाया इन्होंने। ओके, मतलब ये सैयद डायनेस्टी चली थी, और ये 14 to 1421 तक की ये रहे थे, और मतलब तुगलक डायनेस्टी से ये लड़े, और फिर इन्होंने उसको हराया, और फिर खुद सुल्तान बने। ठीक है, और उसके बाद लोधी जब वो तब तक अपना कार्यकाल संभालते रहे जब तक मतलब और भी लोगों ने चलाया सुल्तान, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और मृत्यु के बाद लोधी डायनेस्टी बनी। लोधी डायनेस्टी इज़ द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड टिल 1451 to 1526। ओके, मैं आपको और लोधी डायनेस्टी के बारे में बताती हूँ। वेट,
About Lodi dynasty. लोधी डायनेस्टी से 1451 तक the Lodi dynasty was the Afghan dynasty that ruled the Delhi Sultanate from 1451 to 1526. It was the fifth and final dynasty of the Delhi Sultanate and was founded by Bakul Khan Lodi when he replaced the Sayyid dynasty. Okay, thank you everybody. हाँ सॉरी बताना था कि जो सैयद लोधी डायनेस्टी थे उसके जो लास्ट मेंबर थे बहलूल लोधी. ओके, तो उन्होंने रूल किया था 1451 टू 1489 तक. ओके, और यही लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की. एंड यहाँ पे हम लोग का ये टाइटल्स एंड होता है. तो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. मेरे और वीडियोज़ के लिंक आपको मतलब जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.